सर So जनरल yeah, सर जब हम टेस्ट देते हैं ना तो वो सबमिट करने के टाइम पे ना वो लास्ट में वार्निंग देता है ना, हाँ हाँ यू रियली वांट टू सबमिट, फिर yeah, यस बोला ना तो वो हाँ कभी-कभी बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया करके। ओके। यूजुअली आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए। हाँ, An unexpected. Okay, send me the screenshot whenever it occurs. Usually it shouldn't come, but I'll see. Okay, I'll forward it to our IT guy. Just send me अच्छा। that screenshot. Okay. Yeah. हाँ सर, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स टेस्ट 1 के रिजल्ट देखे ना, तो Yeah. मेरा टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट्स ही है, वो तब भी आया था। Okay. Okay. Due to that reload. Okay. हाँ, Okay. हाँ। See that. Huh? Yeah. So let's see in the previous lecture what we were discussing. Yeah. So force के काफी example हमने देखे थे, and then we discussed this conservation of momentum. So conservation of momentum I guess सबको समझ आ गया होगा और बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे करना है, फिक्स्ड एग्जांपल्स जो थे वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। उसके बाद जो टॉपिक मैंने एंड किया हुआ था लास्ट में, वो कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, क्या, बेसिक मैथ्स के बारे में। बेसिक मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे यहाँ पर, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जहाँ पे थीटा मतलब है एंगल। तो मैंने यहाँ पे लिखे भी थे कि कुछ फेमस नेम होते हैं एंगल के लिए, लाइक थीटा, अल्फा, बीटा, फाई, ये कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं जो एंगल के लिए यूज करते हैं। लाइक हम बोलते हैं 30 डिग्री, 50 डिग्री। सो आपने सुना होगा एक्स, वाई, जेड, ये मतलब ये कुछ वेरिएबल्स है जिन पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक्स कैन बी एनी वैल्यू, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली these alpha, beta, theta, phi, these are variables. theta, phi मतलब कुछ भी हो सकता है, this can be 20 डिग्री, 25 डिग्री, whatever. So these are like variables like x, y, z for simple mathematics, and for angle we use theta, alpha, beta, like these. Then I showed an example that where to use these things, how to use these parameters. Then there is this table regarding all the values. So in the previous lecture itself, I asked everyone to remember these values and two special values, 37 degree and 53 degree also I asked to remember it. And the good thing about 37 and 53 degrees that it is a Pythagoras combination of 3, 4, 5. Okay, so all you need is, if there is 37, if there is 37, that means angle is smaller. So this side must be smaller. So this side must be 3, this must be 4, and diagonal is always highest. So like that we can arrange for 37 degree. Then if we want to arrange for 53 degree, so that means angle is higher. This must be 4, this must be 3, and this must be 5. अभी ये है कि कुछ लोग सोचते हैं सर एंगल ज़्यादा है तो why it cannot be 5, because the diagonal must be the highest side. So that's why this will be 4 and diagonal will remain as 5. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हमें साइन थीटा कॉस थीटा को अरेंज करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भूल गए होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, तो मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। जस्ट look through these figures. Suppose you have a triangle which is a right angle triangle. So all these I have drawn are right angle triangles. Then sin theta belongs to perpendicular over hypotenuse. That means theta के सामने वाला side. So this yellow highlighted part divide by green highlighted part. So like that you need to remember. Suppose you need to find h or p, then you need to use sin theta. Then if you want to relate this base, then you can use cos theta. If you have no knowledge of diagonal but you want to relate perpendicular and base, you can use tan theta. And all the values of these particular angles is listed in the table. So you must also remember this. Then there is no problem of learning the table of tan, as we know it is a divide of sin by cos. तो वो भी माइंड में रख सकते हैं. Else it is preferable कि आप सारी चीजें याद करके रखो. तो आज पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, देन
देखेंगे इनका यूज क्या है एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा किस लिए क्यों सीखा है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़े से कुछ एग्जांपल देखेंगे देन हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें हमने क्यों सीखी हुई है। एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा स्ट्रेट एग्जांपल ही बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स बहुत क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना था कि साइन थीटा और ये क्या होगा। तो किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है, सब लोग सॉल्व करके रखेंगे। आई आस्क naming the students, okay? I'll name certain students and they'll need to answer only. So the reason is you need to find the values of x and y. So find okay. So I have given four figures, four triangles, and everyone need to solve the values of x and y in given triangles. So use that trigonometry combination. Check which theta will be used. Means sine will be used, cos will be used, or tan will be used. So check for the theta, then find solve it for the given values. I think this is a very easy one, but those who haven't gone through the previous lecture or haven't revised, it will be a little tough for them. So that's why I recommend in physics, you must go through the previous lecture before attending the ongoing or next lecture. So let me ask one by one. Okay, Pratik. Pratik, hello. Yes, sir. Yeah, आप बताओ which theta I'll be using in this first figure? Sine, cos or tan? Which parameter I'll be using? आपको याद है साइन का फॉर्मूला क्या रहता है? किनको रिलेट करता है साइन? एक मिनट। प्रतीक आपने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया था? नहीं सर। ऐसा क्यों करते हो? मैं बार बार बोलता हूँ बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर यू मस्ट गो थ्रू एटलीस्ट। I have putting it. या ओके दिया Yes, sir. या will you answer which theta will be using in this? Yes, sir. Perpendicular upon hypotenuse. Yeah, very good. So we want to know perpendicular and we have hypotenuse, so we'll relate perpendicular or hypotenuse, which will give that Sine. sine. Okay, so that's how we need to think. We need to go check that this is a perpendicular and hypotenuse are given. So I'll be using sine 37 degree. So this will provide me like perpendicular divided by hypotenuse. The value of hypotenuse is 50. Now the second step is you need to know what is the value of sine 37. Yeah, Dia, will you tell what is sine 37, the value of it? The value of sine 37?
ओके, तो याद कैसे करना है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे भी डाउट रहेगा, पूछ लेते हैं। गौतम आप बताएं, sin 37 वैल्यू। सर 3/5। या वेरी गुड, दो ही चीजें यार, देखो 37 एंड 53 डिग्री, आपको ये दोनों याद रखने हैं ना। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, 3 4 5, डायगोनल तो 5 ही रहेगा दोनों में। यार मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से ये चीज सोचो और जस्ट सपोज 37 डिग्री है, सो हमें पता है कि 3 और 4 ही आने वाले हैं। जब एंगल छोटा है दैट मीन्स परपेंडिकुलर मस्ट बी 3 एंड बेस शुड बी 4। अभी जब 53 डिग्री है, सो परपेंडिकुलर शुड बी हाई एंड बेस शुड बी लेस। बहुत ही सिंपल है। सो मैंने 37 पूछा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज 3 एंड hypotenuse is 5. So the value of sin 37 is going to be 3/5 is equal to x by 50. Now I cross multiply it, so I'll get the x is equal to it is 3/5 into 50. Okay, so this will be solved and the answer will be 30. 30. Okay, good. So इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बताए किसी को डाउट हो कुछ? या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? डायरेक्ट मैं भी बताऊंगा, पहले हम ये स्प्लिट वाइज करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? या फिर पहले भी आपको यूज करना सिखाते हैं कि कैसे चीजों को यूज करना है। लेट्स सी नेक्स्ट, बात करते हैं इस सेकंड वाले ट्रायंगल में। तो सेकंड ट्रायंगल में क्रिस, आप आंसर करें। हेलो क्रिश। ओके, संस्कार यस सर। आप बताएं कौन सा पैरामीटर यूज होगा? सर परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा। वेरी गुड, परपेंडिकुलर एंड बेस आर गोइंग टू बी यूज्ड, दैट मींस क्या यूज होने वाला है? tan थीटा। सो इट इज tan 45 डिग्री, it is perpendicular, that is 20, and base is y. What is the value of tan 45? 1. Very good yaar. So it is 1, so it will be 20 divided by y. If I cross multiply it, y will become 20 meters. That's good, very good. Okay, next शिवानी। शिवानी आप बताएं थर्ड में which parameter we should use? या सिद्धेश पूछे। सर sin थीटा। या ओके, ठीक है। So because there is a perpendicular and hypotenuse relation, we'll be using sin theta. So which is sin 53 degree. So this will be how much? 24 divided by perpendicular divided by diagonal. Now the value of 53, as I am telling you, 53 is higher, which means 4 should come 4 first. by 3. 5 by 5. 4 by 24 by yeah x. X. So अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। So x will be 4 by 5 into 24. क्लियर? सो अभी ये सॉल्व नहीं होगा, x की जो भी वैल्यू आएगी इट विल रिमेन एज इट इज। ओके, कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट। ओके, सो लाइक दैट ये वाले फिगर पे देखे, इसमें क्या यूज करेंगे हम? we have base here and we have hypotenuse here. Hypotenuse. Cos theta. Cos theta. Cos theta. Yeah, very good. So we'll be using here cos 60 degree. It will be y by 30. So cos 60 degree, the value is half 1 by 2. Yeah. So this will be 30. So y will be 1 by 2 into 30. So it's going to be 15. 15. Yeah, good. So like that we can use these parameters sin and cos. तो ये एक जस्ट मैंने बेसिक्स बताया कि इन्हें हमें यूज कैसे करना है। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से मेन काम पे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्सेस का। सो हमें फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना है कि फोर्सेस को कैसे हमें हैंडल करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इनको साइन और कॉस ये जो है इन्हें फोर्सेस में कैसे यूज करेंगे। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड
रिजॉल्विंग हेलो ऑफ सर। फोर्सेस। या सर वो थर्ड वाला है ना ऊपर का, वो हाँ उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, मतलब 4x इज इक्वल टू 24 इंटू 5। 5 into 24/4 आएगा उसका आंसर। या सर okay, yeah, I missed it. Okay, yeah, so this is going to be 24 into 5 by 4. 30 degree. Yeah, that's correct. Now, so now we can solve. It will be 30. Yeah, good. So now I'm going to use these parameters in a different technique. That technique is called resolving of forces. Resolving of forces. अभी आपको समझना है रिजॉल्विंग का मतलब क्या है। यहाँ पे रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस है क्या चीज़, तो देखेंगे। अभी मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, और मुझे पता है ये बॉक्स को कोई इधर पुल कर रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। या लेट्स से ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ है, ये लेट्स से किसी प्लेन पे रखा हुआ है बॉक्स, एंड समवन इज पुलिंग इट इन ईस्ट डायरेक्शन। डन। सो बताओ किस तरफ मूव होगा? ईस्ट ईस्ट की तरफ। ईस्ट। quite simple, yeah, quite simple, that's okay. Now if someone is pulling it like this, now in which direction it will move? नॉर्थ नॉर्थ Northeast. ईस्ट डायरेक्शन। No. We don't use the term northeast exactly. Okay, we don't use the term northeast exactly. Why? रीजन क्या है देखें। रीजन इसका ये प्रॉब्लम इसमें क्या आता है कि नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एग्जैक्ट इन बिटवीन, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स व्हेन इट इज एट 45 डिग्री it will be called at northeast, but if it is at some different angle we'll call it as whatever angle is there. Suppose 20 degree is this, so it will be called 20 degree ईस्ट। NE. डन। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस के बारे में समझने में ये याद रखना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है ये। अच्छा, तो फर्क क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है? पॉइंट ये है कि whenever there is a single force but you cannot check how much it is going to be straight and how much it is going to be vertical. डन। ये सिचुएशन है सपोज। तो अभी रीजन क्या है? रीजन क्या है कि मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ रिजॉल्विंग का पर्पस क्या है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा। सपोज ये बॉक्स है और एक पर्सन है यहाँ पर, वो इस बॉक्स को किसी डिफरेंट एंगल पर पुल कर रहा है, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है कि क्या डेफिनेटली ऐसा होगा क्या कि ये बॉक्स ऊपर आ जाए? ऐसा होगा क्या कि ये लिफ्ट अप हो जाए? नहीं होगा। स्लाइट लिफ्ट अप होगा बट कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सपोज दिस फोर्स इज 100 एंड दिस मास इज 20, नाउ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? टेल मी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? 5. 5. Everyone is clear? Acceleration is force by mass, because we know the 5 formula F is equal to m into a. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yeah, so it will be 100 by 20. So this will be 5, which is a wrong answer. Now, why it is a wrong answer? Because the effect of force which is going to accelerate it is not exactly 100. Clear? That means the resolving of force means keep checking its effect on a particular direction. What we mean by resolving is checking or finding its effect on a particular direction. Got it? Resolving का मतलब ये है कि ये फोर्स है, मुझे चेक करना है कि हाउ मच फोर्स इट इज गोइंग टू फील इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई देयर इज अ फोर्स फीलिंग? बिकॉज ये 100 जो लगा रहे हैं हम किसी एंगल पे लगा रहे हैं ना। तो इस एंगल से देखो, आप जस्ट ट्राई टू फील कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको रोप लगा के पुल कर रहे हो, तो ये आगे तो आएगा बट थोड़ा सा लिफ्ट अप भी तो होगा ना। ओके, सो एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस सर। थोड़ा सा आगे जाएगा बट थोड़ा लिफ्ट अप भी होगा। दैट मीन्स कभी अगर हमने एक्सिस के बीच में फोर्स लगाया, सो इट विल हैव इफेक्ट इन बोथ द एक्सिसेस। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। तो मुझे लगता है अभी आपको फील तो आ गया कि रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस क्या है एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि करना कैसे है।
how to resolve these things. देखिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज. Resolving of forces means, suppose there is a box, I am using a force F at certain angle theta. Now if I interpret it, so the interpretation is box will not feel all the force in horizontal direction. पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरा फोर्स फील नहीं होगा. क्लियर? इट विल हैव सम इफेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सम इफेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो इट विल हैव some effect on x-axis and some in y-axis. तो इस तरीके से पॉइंट रहेगा कि वो कुछ इफेक्ट उसका एक्स एक्सिस में आएगा, कुछ इफेक्ट उसका वाई एक्सिस में आएगा. तो मतलब कुछ ऐसी फीलिंग भी तो हो सकती है. सपोज एक बॉक्स रखा हुआ है और उसको यहाँ लेके जाना है, तो एक तरीका है दैट यू अप्लाई फोर्स डायरेक्टली, और एक तरीका ये भी है कि सम पर्सन इज पुलिंग इट फ्रॉम दिस साइड and some are pulling it from this side. You will see that this box is going to move in this direction. Yeah, so which means that the combination of two forces can be a straight force. Okay, the similar can happen in this situation also, that a force can be resolved into different effects. So all right, resolving means finding its components or its effect in different axes. So all right, resolving means finding its different components components का मतलब क्या होता है? different parts मतलब यहाँ पर हमारा पार्ट क्या है? effects. different components are effect on different axes. ये तो ये इसका मीनिंग होता है वेक्टर रिजॉल्व का, कि किस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा. अच्छा, अब एक मैं कॉमन सेंस की बात बताता हूँ. क्या? देखें, सपोज एक फोर्स है, वो ऐसे एक्ट कर रहा है, तो बताओ इसका इफेक्ट किस किस एक्सिस में देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पर देखने को मिलेगा और वर्टिकली. yeah, दोनों this एक्सिस. is actual force, and these red ones are called effect or components. The better term is component. Component मतलब उसके part. The whole thing is made of certain components. So these two are certain components or effects. अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाते हैं. एकदम बेसिक सा लॉजिक. क्या? सपोज एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है. Now what will be the components? In which direction the components will be? In the west and south. Very Yes, good. So South one and component will be there and another component is will be south. there. Yeah, so that's great. So ये component हो जाएंगे. So step 1 सबको समझ आया, that in which direction we'll find the components. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now part 2 is part 1 is the direction in which we will find the component. Part 1 is okay. Now part 2, about the value of components. So all right, suppose एक फोर्स है एकदम मिडिल पे, एकदम बीच में है दिस फोर्स, और इसके कंपोनेंट है ये. सो ऑल राइट, दिस इज अ एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज अ वाई कंपोनेंट. What do you think of x and y? The value of x and y.
So the first part is regarding the direction, किस तरफ होगा, and the third part is regarding the values or magnitude. Magnitude जानते हो ना आप word? Magnitude means value और value. ठीक है, तो बताओ आपको क्या लगता है, अगर एकदम एकदम मिडिल पे फोर्स लगाओगे तो जो इसके कंपोनेंट होंगे वो सेम रहेंगे ना यार? हाँ हाँ सबको ये फील हो रहा है ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट सेम है और एकदम मिडिल पे लग रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट विल हैव सेम वर्थ, तो वैल्यू वाइज एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? FY के। FY. अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सपोज द फोर्स इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स, अच्छा मैं लिख देता हूँ, मिडिल मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री. ठीक, अब नाउ दिस थीटा इज लेस देन 45 डिग्री. क्लियर? या सो दिस इज अ फोर्स. अभी कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रहेंगे? वही कंपोनेंट वही रहेंगे, FX and FY. fx एंड fy. X and FY। नाउ अभी जस्ट फील करके बताओ कि f का इफेक्ट किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा? FX. x की तरफ ना. एक्स एक्सिस तो या FX का। या सो दिस शुड बी प्रॉपर इन योर माइंड कि एंगल कम है, दैट मींस इफेक्ट किस तरफ ज्यादा होना चाहिए? fx का इफेक्ट ज्यादा हाँ. होना चाहिए. सो आई विल जस्ट राइट इन सिंपल वर्ड्स दैट fx शुड बी ग्रेटर देन fy. FY. एनी डाउट? ओके, No, sir. नो सर. दैट्स वेरी गुड. तो ये क्लियर है कि इफेक्ट किस तरफ होने वाला है. तो मतलब अगर लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा फोर्स पाए, तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि अगर एंगल 45 से ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं है. क्लियर? हाँ. इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा. तो हमें एंगल ऑलवेज 45 से कम रखना पड़ेगा, देन विल हैव मोस्ट ऑफ द इफेक्ट टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक्स एक्सिस. तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे. बट ये फील आया सबको? Yes, sir. अच्छा, अब थर्ड पार्ट, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी. ये तो जस्ट हमने कंपैरिजन बताया ना, कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड्स. तो ये था कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड्स. अभी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देख लेते हैं. सो लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा. ओके, तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये एफ है हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. अच्छा, किसी एंगल के साथ आपको थीटा गिवन होगा. अभी मैंने ये बीच में बना दिया, थोड़ा सा एंगल पे बना देते हैं. सो सपोज ये थीटा गिवन है. सो सबको याद रखना है दैट द कंपोनेंट्स आर हाउ I'll write the term cos theta is multiplied in the axis with which angle is given. मतलब बहुत ही सिंपल है. आपको क्या याद रखना है कि किस एक्सिस के साथ एंगल आपको गिवन है. बताओ एंगल इसमें किसके साथ गिवन है, एक्स के साथ या वाई के साथ? X के साथ. So you know your answer now that the value of fx is going to be f into cos theta. अब समझ में आया what was the use of these thetas? Clear समझ आया सबको? And Yes, sir. fy will become, its perpendicular part will always become f sin theta. Is everyone okay with this? यस सर. What are the exact values of those components? ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है. Yes, कई बार sir. some student think that सर x में always cos theta आता है. नहीं, x में always cos theta नहीं आता. We'll see it with an example कि cos theta will be from which direction the theta is given. Suppose this is our force.
and this is 30 degree. This is F is equal to 100 Newton. Clear? I'm giving an example. I'm asking find the amount of force working horizontally or towards each direction. तो ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन रीड करें सब लोग, फिर से मैं बोलता हूं that what is the amount of force acting towards east direction, ठीक है? So the thing is आप ये आंसर नहीं कर सकते हैं. You cannot answer F is equal to 100 Newton. Is this correct? No. It is not working towards east because it is not working. It's not working towards east. सर ये Okay. y एक्सिस की तरफ वर्क करेगा ज्यादा y एक्सिस की तरफ वर्क करेगा. तो पॉइंट ये कि हमसे y वाला नहीं पूछा है. अगर हमसे पूछा है तो ये हो गया fx और ये हो गया fy. हमसे fx पूछा है, क्लियर? और ये हो गया fy. अब मुझे बताओ यार कि क्या fx cos थीटा होता है क्या? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि fx को बोल दोगे f cos थीटा? नो. ऐसा नहीं होगा. डन. cos थीटा किसके साथ आता है? जिस एक्सिस के साथ हमें एंगल गिवन है. given. क्लियर? सो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी, द टर्म cos थीटा इज मल्टीप्लाइड इन द एक्सिस विद विच एंगल इज गिवन. तो किसके साथ एंगल गिवन है? y के साथ. One. यस. तो इसका मतलब ये होगा द एक्चुअल वर्ड्स विल बी fy विल बिकम f into sin theta. F into sin theta. हाँ fy will Fy become F into cos theta. f into cos theta and the fx will become f into F into sin sin theta. theta. So these are two parts which are correct. अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, so as per the question the answer is, the question is asked force towards east. So force towards east means fx पूछा है. So now we know that is f into sin theta. तो ऐसे याद मत करना कि सर ये वाला sin theta है, नहीं. What is the logic? With which axis theta is given, that will carry the cos theta and the other one will carry Sin sin theta. theta. Good. So the value of f is 100 into sin 30 degree. What is the value of sin 30 degree? √3/2. हाँ, sin Half. 30. 1/2. Half. 1 by It is 2. 1/2. So the force will be 50 Newton. So you 50 see, Newton. that person is going to apply 100 Newton. But what is the actual feeling? He'll be able to use just how much? 50 Newton. 50 Newton. So what happens in the gym? I'll tell you what happens in the gym. You see, there is a certain weight. Clear? All the pulleys are like that. Suppose a pulley is there in this direction, but that person is pulling it like this. So what is going to happen? This pulley is of course lifting this object, but the person Force is ज़्यादा applying लगाना force पड़ेगा. in this direction. Clear? तो इसका मतलब ये है कि ये 20 kg का है. इसको लिफ्ट करने के लिए हमें 20 kg जैसा फोर्स लगाना चाहिए था, बट वो पर्सन इस एंगल पे लगा रहा है, इसलिए उसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्ट आएगा यहाँ पर, हमें इफेक्ट 20 चाहिए. आप समझ रहे हो? हमें इफेक्ट 20 चाहिए, मतलब ये वाला तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि इसका कंपोनेंट 20 है. तो इसलिए एंगल चेंज करने से मतलब 20 kg वेट को भी लिफ्ट करने में भी टफनेस हो जाएगी. अगर आपको जस्ट डायरेक्ट पुल करना है तो बहुत इजी होगा वेट, पर जितना आप एंगल चेंज करते जाओगे उसका ये वाला इफेक्ट क्या होगा? कम. तो मतलब सर मतलब करेक्ट एंगल से इजी होगा. करेक्ट एंगल से इजी होगा, बट मसल्स नहीं बनेंगी ना. जितना ज्यादा अच्छे से करोगे उतना बेटर मसल्स आएगा ना. तो इसलिए डिफरेंट इवन 20 kg वेट से डिफरेंट एंगल से डिफरेंट फोर्स लगाने से आपको बहुत डिफरेंट वर्कआउट हो सकता है. ठीक है? तो ये जस्ट था कि कैसे हमें यूज करना है. तो अभी यार सबको समझ आया फोर्स में हमारा पर्पस क्या था साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ने का? Yes, sir.
गुड। अब इसको थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन में ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट लोग सॉल्विंग में कुछ गलती कर देते हैं। क्या कंपोनेंट हमेशा किसके लेते हैं? मेन फोर्स के। समझ रहे हो ना, मेन जो हमारा फोर्स है उसका कंपोनेंट लिया जाता है। तो कभी अगर आपको अलग दे दिया और एग्जैक्ट फोर्स पूछा तो कैसे निकालेंगे, इस एग्जांपल से हम देखेंगे। आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर टेक्स्ट करेंगे। ओके, देते हैं एक Okay, so everyone, the question I guess is clear to everyone. अगर हमें इसे लिफ्ट करना है, सो कितना वेट हमें चाहिए? लिफ्टिंग फोर्स लिफ्ट 50 kg। 50 kg। सो फोर्स कितना हो जाएगा 50 kg के लिए? mg जितना फोर्स होगा ना, हाँ। तो दैट विल बी 500। तो लॉजिकली से 500 लगना चाहिए था, बट अभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में, और हमें उसका सिर्फ क्या मिल रहा है? कंपोनेंट मिल रहा है। समझ आया? तो ये मैंने रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया हुआ है क्वेश्चन। आपको कैसे फील करना है, क्वेश्चन रियलिस्टिक हो गया है। तो मैं सबसे पहले एक लाइन लिखता हूँ। सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए सबको। क्या? टू लिफ्ट दिस, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इज, ये किस डायरेक्शन का? वाई डायरेक्शन का है ना ये। सो वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? इक्वल टू वेट। डन। So I'll write Fy is how much? It is weight, which will be mg, और mg मतलब g हम easy के लिए क्या ले लेते हैं? 10। So कितना फोर्स चाहिए हमें? 500 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। बट पर्सन कितना लगा रहा होगा वो आपको चेक करना है। जल्दी से चेक करें, सॉल्व करें, देखें सर मतलब हमें फाइंड करना है कि उसे कितना लगाना पड़ेगा कि कितना वो लगाना पड़ेगा। सर एग्जैक्टली। वो 5000 न्यूटन होना चाहिए ना? 5000 न्यूटन आना चाहिए सर। अरे नो सर, क्यों भाई, ये 10 है। 100 लिया था। हाँ जी की वैल्यू 10 है, 100 थोड़े ना है। मिसप्रिंट है, मिस टाइप हो जाता है। ठीक है या? तो अभी हमें फाइंड करना है F। तो पहले आप ये सोचो कि आपको कंपोनेंट फाइंड करना है या एक्चुअल फोर्स फाइंड करना है? पहले बताओ। एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स फाइंड करना है तो पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वाली थोड़ी सी बात बदल जाएगी। याद है? तो बना लेते हैं यार, फोर्स बना लेते हैं। देखो हमें क्या पता है, हमें फाइंड क्या करना है? F फाइंड करना है। और जबकि हमें पता कौन सी चीजें हैं, ये 30 डिग्री पता है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा हमारा? F x, और ये क्या बन जाएगा? F y। क्लियर? अब हमें F फाइंड करना है, बट गिवन क्या है? Fy गिवन है ना, तो Fy लिखने का ट्राई करेंगे। बताओ Fy कैसे लिख सकते हैं? F into sin F theta. इंटू साइन थीटा। Sin सबको theta. समझ आ रहा है ना? थीटा इज गिवन हाँ विद सर। x, सो ये परपेंडिकुलर क्या वाला हो जाएगा? F इंटू साइन। Sin नाउ हमें ये पता है और ये वाला फाइंड करना है, तो रख देते हैं यार वैल्यूज। ये कितना है? 500। ये कितना है? F फाइंड करना है हमें। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पता है आपको ऑलरेडी। थीटा हटा के मैं साइन 30 डिग्री लिख देता हूँ। इट इज हाफ। हाफ। दिस वैल्यू इज हाफ।
So what will be the force required exactly by that person? It will be 1000 Newton. 1000 देख रहे हो? 1000 न्यूटन 50 kg उठाना है बट उसे फील एकदम अलग आ जाएगा, बहुत ज्यादा। तो यही हाँ। हम बताना चाह रहे थे कि कैसे आपको एग्जैक्टली यूज करना है। अभी समझ आया क्या यार सबको? यस सर। हाँ सर। पक्का सबको समझ में आ गया ना साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसे Yes, रहेंगे? यस एक और क्वेश्चन दे। हाँ चलो। सर, मतलब अगर हाँ उस एक्सिस पे गिवन है तो हमें कॉस थीटा यूज करना है, हाँ, और अगर दूसरे एक्सिस पे फाइंड करना है तो साइन थीटा। साइन थीटा जिसके साथ थीटा गिवन है उस पे फाइंड करना है तो कॉस थीटा, उसके अपोजिट है तो साइन थीटा। चल एक और एग्जांपल देखते हैं। सर अगर आंसर आए तो चैट बॉक्स में करना है। हाँ बिल्कुल, आंसर टेक्स्ट करें सब। लेट्स सी कितने लोग को समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा। एवरीवन हैज टू आंसर इन द चैट बॉक्स। वो मुझे आइडिया लगेगा कि कितने लोग को क्लियरली समझ आ गया है। जल्दी से करना है, फास्ट करना है। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी यार जल्दी करें, सबको टेक्स्ट करना है ये आंसर। आई नीड टू मेक इट क्लियर कि सबको क्लियर समझ आ गया। Samiksha, at least see the question, what is asked? अरे तुम तो मार खाओगे। क्वेश्चन तो देखो यार, क्वेश्चन में क्या पूछा है। आंसर मी whatever is asked in the question. ओके समीक्षा, आप बताओ, जो 37 डिग्री का ट्रायंगल होता है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं? 37 डिग्री के ट्रायंगल में साइन थीटा 3/5. Okay, sin theta will be 3/5. Done. Why? Because perpendicular becomes 3, this becomes 4, and this is 5. Why it is perpendicular is 3? Because 37 is a less angle. And what is the cos theta? 4/5। Yeah, so it will be base over hypotenuse. So it will be 37, it will be 4/5. There at least you need to solve
प्रॉपरली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, बट याद करना है जल्दी। विदाउट दीज वैल्यूज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। Yeah, any doubt? Siddesh, it's not correct. Arnav, now it's correct. Samiksha is still not correct. Samiksha, I don't know what happened. Even you told that the values are these. Still, you only are making these mistakes. Those students getting 15 answer, they are certainly wrong, yaar. Why you are doing like that? अभी तो बताया, अभी बताओ यार, मतलब क्लियर है कि नहीं यार? कितना स्ट्रेट आपको बोला, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा रहे हैं क्या कि ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो जिस भी एक्सिस के साथ एंगल गिवन है इस पे क्या कंपोनेंट आएगा भाई? cos थीटा को मल्टीप्लाई करना है ना। cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी लोग cos थीटा का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो यार तुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर दे रहे हैं। या नाउ इट्स करेक्ट अदिति, अंशिका, बट दैट्स रियली बैड। You must get the answer in the first attempt only. So there is a possibility that you might get confused regarding these values, but I have written these values now here. Even then also you are making these mistakes, and the vertical component will be into sin theta, but we are not interested in vertical component. So just make sure everyone now just see what I am solving. I need to solve the horizontal component because that's what is asked in the question, horizontal component. So देखिए fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी now? fx will be f, which is 1000 into cos 37. So cos 37 is 4/5. अब ये याद करना होगा. I don't know why you are not following the logic. I'm again and again explaining, don't get confused with the values 3 or 4. Just follow the logic. If it is a smaller angle, sine is going to be smaller because sine carry the perpendicular part. Sine will be 3/5 while cos will be 4/5. So the answer will be 800 Newton. So this is our horizontal force. Now अब बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर ये किया हुआ है 800. यार 800 आंसर नहीं, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इक्वल्स के में यूज करना होगा। Yeah, so acceleration in horizontal direction. So I'll say horizontal direction मतलब acceleration in x-axis. So acceleration towards x-axis. x-axis. So x-axis का अगर acceleration पूछा है मतलब x-axis का पूछा है, what will do? Force of x-axis and mass. So force of x-axis is 800 divided by mass is 40. So it will be 20 meter per second square. So it is just as simple as I explained. अभी बताओ किसी को कोई डाउट आया क्या? कोई डाउट हो तो पूछो यार, अभी तुरंत पूछो, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ आदित्य का आंसर करेक्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बाकी सब लोगों ने बहुत ही रैंडम वैल्यूज दिए हैं यार। ओके गुड। अभी थोड़ा सा सर केयरफुल ये रहना। आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बिल्कुल यार, तुमने तो मतलब आंसर थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। देखो यार, फोर्स फिक्स है हमारा, इस बार हमें फोर्स चाहिए, उसका कंपोनेंट चाहिए। बताओ, हमें कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना, देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब हमें हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट चाहिए। तो हमें पता है फोर्स है हमारा 1000 और थीटा दिया है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो पता चल जाएगा ना, F इंटू कॉस थीटा हो जाएगा।
और ये वैल्यूज तो यार याद करनी पड़ेंगी यार, ये नहीं याद करोगे तो फिर तो बात ही स्टोरी ही पूरी खत्म। ये वैल्यूज याद कर लो, काम बन जाएगा। समझ आया रे? एफ हाँ सर। और उसका कंपोनेंट। ये लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना। ये लेक्चर आपका मतलब ये समझो कि थ्रू आउट द फिजिक्स काम आएगा। कोई भी क्लास में हो आप, मैटर नहीं करता आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, कहाँ पे भी हो, ये चीजें आपको फोर्स होगा तो उसके कंपोनेंट हमेशा आएंगे। अच्छा, नॉट ओनली फोर्स, किसी के भी कंपोनेंट हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब समझो, किसी चीज के भी कंपोनेंट हम ऐसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूं, आप लोग समझेंगे। मैं यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ, बट वी कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एनीथिंग बाय दिस cos थीटा एंड sin थीटा। डन? ओके, तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि कैसे हम डिफरेंट जगह पे भी ये चीजें यूज कर सकते हैं। सर हमें सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करना है, आंसर देना है। लेट्स सी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ओके, तो पहले चीज ये बताओ यार, अगर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब क्या है? क्यों मैं ये बताना चाह कांस्टेंट रहा हूँ? स्पीड, कैन आई टेल? या हाँ सर, बताएं। 20 की स्पीड से वो यूनिफॉर्म हमेशा के लिए मूव चलेगा। होगा। अच्छा, इससे बेटर क्या होगा? आपको याद हो काइनेमेटिक्स में मैंने बताया थे दो तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं, रिमेम्बर? काइनेमेटिक्स में मैंने बताया था दो तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, क्या? स्पीड इनटू टाइम, याद है? हाँ यस सर। एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। ये कब यूज करते हैं? अभी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो। जीरो है। और ये कब यूज करते हैं? व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो बट कांस्टेंट। तो जीरो नहीं है और एक फिक्स नंबर होता है, तो फिर ये यूज करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है? पहला वाला। पहला वाला। ठीक है, ये तो एक मैंने याद दिला दिया, बट अभी काम की बात पे आते हैं। चले सॉल्व करें, देखें किसका आंसर करेक्ट है। आंसर इन द टेक्स्ट बॉक्स। किलोमीटर में आंसर करना है आपको। किलोमीटर में? हाँ, किलोमीटर में अच्छा लगेगा, या मीटर में भी नो प्रॉब्लम चलेगा। मीटर में आंसर करें, अच्छा मीटर में आंसर करें, बेटर रहेगा। वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड। करेक्ट आंसर। आदित्य नॉट करेक्ट। I do not know why, how you can make so silly mistakes even after explaining again and again the same thing. Just be careful. It's not like you didn't understand the idea. Everyone has got the idea properly, I know. It's just you are not applying it sincerely.
So don't worry, apply it sincerely, everyone. Yeah, Samiksha, correct. Adit, now it's correct. What about the others, sir? Everyone has to answer. सर आप बताने वाले थे कि क्यूमुलेटिव टेस्ट में कौन से हाईलाइट पॉइंट्स आने वाले हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है, चलेगा, ये डिस्कस करके फिर करते हैं। हाँ देखो यार, अभी बहुत ही क्लियर है। मैं देख रहा हूँ बहुत कम स्टूडेंट ने, सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ने ही अभी तक मैसेज किया हुआ है यार। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ जाता है बट दे डोंट टेक्स्ट इट। यार दिस इज नॉट गुड। आपको क्या करना है, इट इज आस्क्ड अलोंग एक्स एक्सिस ना। what I'm telling you that everything which is not inclined in a proper direction will have a component. यहाँ पे किसके कंपोनेंट करने हैं इस बार? स्पीड के। क्लियर? हाँ फोर्स के नहीं, स्पीड के कंपोनेंट करने हैं। तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, बार बार वही बता रहे हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। एंगल कहाँ से दिया है आपको? यहाँ से दिया है 53 डिग्री। तो इसका मतलब हमें कौन सा कंपोनेंट क्वेश्चन में पूछा है? साइन। ये वाला। सर हमें साइन फाइंड करना होगा, हाँ, तो इसका क्योंकि मतलब अगर y से फाइंड करना होता तो हमें cos से मल्टीप्लाई करना होता। अगर ये थीटा गिवन है, सो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिसके साथ थीटा गिवन है इसमें इट विल बिकम इनटू cos थीटा, सो इट विल बी 20 into cos 53 degree, but the speed in this direction vx, it is actually vy, so vx will become how much? 20 into sin 53 degree. मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ यार, 53 डिग्री याद कैसे रखना है? साइन इज लार्जर फॉर लार्जर एंगल। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा साइन इज लार्ज फॉर लार्जर एंगल। चाहिए तो ये लॉजिक यार यहाँ पे लिखो, कभी भूलो नहीं। साइन इज sin theta is higher for higher angles। मतलब sin 53 डिग्री will be greater than sin 37। तो हाँ। इसका मतलब ये है कि 53 में क्या आएगा? 4/5 आएगा, और 37 में क्या आएगा? 3/5। अब बताओ इससे इजी भी कुछ होगा क्या? No, sir. मतलब अब आपको इससे सिंपल मैं क्या बताऊं यार, आपको तो याद करने में भी अब दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, स्ट्रेट बता दिया भाई साइन की वैल्यू हायर एंगल के लिए ज्यादा होती है, तो 4/5 यूज करना है, और अपोजिट यूज करना है किसमें? कॉस में। साइन के लिए याद रखो, कॉस के लिए उल्टा यूज कर लो। so now it is 20 into sin is 4/5, so this will become 16. Clear? So in the horizontal direction it is moving with a speed of 16. So horizontal distance पूछा है ना क्वेश्चन में। So horizontal distance मतलब स्पीड कौन सी यूज करेंगे? x वाली स्पीड यूज करेंगे इनटू टाइम। So x वाली स्पीड कितनी है? 16 इनटू टाइम कितना है? 60 सेकेंड। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 960 960। मीटर। सर या मैंने इधर एक ऑब्जर्वेशन किया है, हाँ, अगर हमने इसमें cos 37 डिग्री यूज करके किया ना तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। बिल्कुल आएगा सेम, बिकॉज थिंक इट इन अ डिफरेंट वे, जस्ट थिंक इट इन अ डिफरेंट वे। हाउ? क्वेश्चन इज गिवन यू दिस,
question has been given like this, that this angle is 30 degree, but as you know, you can change the question, not a problem. You can change the question, so you can change it and you will find that it is very similar to this. What एंगल आप वहां से 60 दिया है, बट यहाँ से सॉरी वहां से 30 दिया है, इसका मतलब यहाँ से कितना होगा ये 60. 60 डिग्री 90 minus 30. 30. So both things are very similar. Either you solve it like this कि ये हो गया f into cos 60 and this will become f into sin 60. Both will give the similar answer like this, f sin 30 और ये होगा f cos 30 degree. Clear? So what I'm telling you कि cos 30 is same as sin 30. Clear? तो इसलिए आंसर बिल्कुल सेम आएगा because cos 30 is equal to sin 60. ठीक है? And sin 30 is equal to cos 60. तो आंसर किसी भी मैनर से करो, you will get the same answer. Clear? तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ आ गई होगी यार सबको, पक्का? Yes sir. ओके, तो डिस्कस करते हैं यार अपन नेक्स्ट पार्ट. एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सी कितने लोग चेक कर पाते हैं. ठीक है, रिलेटेड वही है, मतलब इट इज लाइक कि x प्लस वाई है और इज इक्वल टू कुछ है. मतलब लेट्स से सॉरी मैंने आपको ऐड करना सिखाया 101 प्लस 22. आप ऐड करोगे क्या आएगा 321, ये आया. अब अगर मैं आपको एडिशन सिखा चुका हूँ और मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि यार ये 111 2 3 एंड 4 1 2, तो क्या ये गलत है क्या? सर आपने ये पर सिखाया ही नहीं है हमें. इज इट डिफरेंट टू दिस वन? यार इतना क्या, मतलब ये नहीं कर पाओगे क्या? कर पाएंगे ना. सकते हैं सर. हाँ, सो व्हाट आई एम आस्किंग, इज दिस सेकंड वन डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन? मतलब ऐसा बोलोगे क्या कि सर आपने सेकंड सिखाया नहीं है, टेस्ट में क्यों दे दिया? कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं सर वो टेस्ट में जो आपने दिया वो आपने सिखाया नहीं. इज इट लाइक दैट? No. अगर आप ऐसा बोलोगे और आपके पेरेंट्स अगर ऐसा बोलेंगे तो देन you will never evolve, you will never learn anything. If you will not know how to use the concept on your own, तो वो फिर कुछ बेटर ही नहीं है ना. तो थोड़ा सा देखना है कि टेस्ट कभी ऐसा नहीं रहता कि if I give anything that means that will has some relation with whatever I taught. तो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ मल्टीपल रिलेटेड, दो चीज़ों को रिलेट करके ये क्वेश्चन है. अच्छा, तो एक बात बताओ, ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है. आदित्य आप बताओ और सब लोग सुनेंगे अच्छे से. इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है, सबको पता है. Yes. हाउ वी डिफाइन दिस नॉर्मल रिएक्शन कि कितना लगेगा अमाउंट? स्टेप वाइज बताएं आदित्य. सर मतलब एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग. सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन कैसे जज करते हैं? देयर मस्ट बी समथिंग टू बैलेंस इट ना. हाँ सर, हमें कुछ तो फोर्स लगाना होगा. हाँ, तो अभी इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ऑलरेडी ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल लग रहा है. वेरी गुड. तो ये कितना लगता है ग्रेविटेशनल? -10 मीटर पर सेकेंड. हाँ अरे यार जी नहीं पूछ रहा हूँ, फोर्स पूछ रहा हूँ. कितना लगता है? सर, ये 500 लगेगा इस बार. mg जितना 500. लगता है. फोर्स कितना होता है ग्रेविटेशन का? mg. mg जितना, मास इनटू जी. तो वो कितना हो जाएगा 50 इंटू हम 10 ले लेते हैं हाँ वैल्यू. सो ये 500. अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? 500. बिकॉज इज इट मूविंग? क्योंकि वो स्टेशनरी है ना. No, because it is not moving in y. अगर वो y में मूव कर रहा होता तो डेफिनेटली 500 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा होता. ज्यादा होता है. इट इज नॉट मूविंग इन y. क्लियर? सो y में मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स शुड बी बैलेंस. सो
forces should be balanced. क्लियर है? ये बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं. हाँ याद है? हाँ. So what will be the force here? 500. नॉर्मल 500. Normal 500. So let's consider it as an example. Now next example. सर टेक्स्ट करना है. नहीं अभी नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग ही है. देखिए, now this box is of 40 kg. There must be a force which is normal reaction, always pushing है, याद है ना, and someone is pressing it. Someone is pressing it, वो है ग्रेविटी. yeah, towards gravity, pressing it with F is equal to, yeah, pressing it with F is equal to 200 Newton. Now find normal reaction. समझ आया? बताएं कितना होगा? सर या इस पर तो ग्रेविटेशन का फोर्स लगना चाहिए. वो लगेगा ही. दैट इज कंपल्सन. दैट इज कंपल्सन. कितना लगेगा? 400. 400. That F is m into g. So it is हाँ. 40 into 10. How much it is? 400. 400. Now. और एक एक्स्ट्रा भी लग रहा है, वो है Yes. 200. So इसका मतलब ये है. Now the thing is whether it is moving in y direction or not. नो. So no movement in y direction. फिर नॉर्मल फोर्स 600 लगेगा. Yeah. So no motion in y direction. So इसका मतलब क्या हुआ कि कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल. Yeah. Normal. So is going to balance. Feel it like कि एक 400 नीचे लग रहा है और एक नीचे और कौन सा लग रहा है? 200. और इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल. सबको समझ आया है पक्का? यस सर. सर बट देयर इज वन डाउट. या मतलब नॉर्मल फोर्स को कोई लिमिटेशंस होगा ना, वो नहीं है. नॉर्मल फोर्स कैन बी इनफाइनाइट. ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे? ईदर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी क्रस्ड और द फोर्स विल गो टू इनफाइनाइट. मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है स्क्वीज कर जाएगा, बट नॉर्मल फोर्स को कोई टेंशन नहीं है. आप जितना प्रेस करोगे नॉर्मल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. हाँ. ठीक है. नॉर्मल इज लाइक अ मुझे समझ में नहीं आया. स्टेबलाइजर. नॉर्मल इज लाइक अ काउंटर इफेक्ट. तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ था. यार डोंट डू लाइक दैट यार. मतलब I won't be explaining again and again everything. So it is difficult when you get disconnected and I don't know where to start it again. So if you did get disconnected, follow that video lecture I post. Okay, but I'll explain. Okay, let's think it about one more time. हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता ही है. कौन सा है? ग्रेविटी. It is always acting. ये फोर्स तो लगेगा ही. अब चेक करना है कि नॉर्मल इज लाइक अ काउंटर पार्ट. अगर एक फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल इज लाइक अ काउंटर पार्ट, तो वो तो नॉर्मल तुरंत आ जाएगा. नॉर्मल कैन हैव एनी वैल्यू. ठीक है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं. इट इज जस्ट अ काउंटर पार्ट. जितना आप लगाओगे उतना काउंटर पार्ट वो लगेगा. तो अब इसमें हमें दो फोर्सेस लग रहे थे ना नीचे की तरफ. नॉर्मल इज गोइंग टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज फोर्सेस. तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 200 प्लस 400. 400. यस. तो नॉर्मल विल बी 600. 600. समझ आया? ठीक हाँ है. सर. ओके गुड. अब मैं नेक्स्ट. या सर ये नॉर्मल फोर्स लगता कैसे है? नॉर्मल फोर्स इज रिएक्शन फोर्स ओनली. एक्शन रिएक्शन. हाँ, एक्शन रिएक्शन टाइप से आ रहा है. मतलब तुम किसी को ऑब्जेक्ट को मतलब पुश कर रहे हो वॉल की तरफ. ये वॉल है और तुम पुश कर रहे हो, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को वॉल के इस तरफ आ जाना चाहिए ना पुश करने से. बट आएगा क्या? नहीं आएगा. इसका मतलब वॉल भी आपको रिएक्शन दे रही है. दैट इज रिएक्शन. तो जितनी स्ट्रॉन्ग वॉल होगी उतना ज्यादा वो रिएक्शन दे पाएगी. समझ आया ना? हाँ. Okay. On the mass of the object. No, it doesn't depend upon the mass of the object.
because as I said, Sir, it is, force applied. yeah, it depends upon force applied. Why it depends upon mass? We cannot say that it depends upon mass because it is at rest. अगर रेस्ट पे रखा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, then it depends upon mass. Suppose ये 20 kg है, so it will be like 200. But कोई इसे पुश कर रहा है, तो फिर वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना. So it is not like it depends upon mass. It depends upon force. Applied force कितना है? So when there is no force, applied force is just gravity. And when there are forces, we will solve as per those forces. Clear? Yes, sir. Okay. तो नॉर्मल फोर्स जो है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्स. सो टेंशन नहीं लेना, रिएक्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो रिएक्शन लगा रहा है, मतलब ग्राउंड सरफेस. तो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू नीड टू आंसर इट इन द चैट बॉक्स. Okay, first answer the normal reaction force. Need not to explain this part. I'll be explaining this part. Okay. First सर हम answer ये in ट्राई the करते हैं box. नेक्स्ट पार्ट पहले Yeah. होने के बाद. चलेगा. Answer first. Answer the first part. Okay. Sally not correct. Vasudeep not correct. Okay, very good. Adit, correct answer. बाकी लोग यार लाइक आई एम टेलिंग कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अगर 1 1 1 और 1 2 ये ऐड करने को दिया है तो एग्जाम में मैं फिर 2 डिजिट ही दूंगा. इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस, so you can also add this also. Sir, can I try for the next part? Yeah, sure.
I'll ask it again. Okay, I'll ask it. I'll try. Yeah. Shaili is still not correct. Anshika not correct. Arnav not correct. एक चीज सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए यार, एक वेट तो लगेगा ही, ग्रेविटी तो लगेगी mg करके, वो कितना हो जाएगा 80 इंटू जी की वैल्यू हमने ले ली 10, तो ये 800 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा, ये तो ओके है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है ना यार, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। फोर्स इस डायरेक्शन में है, क्या समझाया कि फोर्स के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट कर लेने पड़ेंगे ना यार, तो कंपोनेंट करके रखो तुरंत। These are its two component. Yeah, now it's correct. Good. I don't know why everyone is getting this much in like multiplying and everything. अभी भी मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, थीटा किसके साथ गिवन है, ये 60 डिग्री। अच्छा, आज के लेक्चर में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब वो पक्का प्रीवियस लेक्चर कुछ रिवाइज नहीं किया इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब जिसे वैल्यू नहीं पता यार 60 डिग्री की, तो उसको कुछ नहीं होगा, मतलब आपको वैल्यू पता ही होनी चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। डन। तो बताओ यहाँ पर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ इंटू साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर हाँ कितना सर, which is कंपोनेंट आएगा, √3/2. यस, एफ इंटू cos 60 डिग्री। क्लियर। अब सॉल्व करके रख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ। बताओ f इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होगा, f कितना है 500, cos 60 कितना होता है यार, जिसे नहीं पता तो फिर उसको प्रॉब्लम ही है। cos 60 डिग्री √3 नहीं होता यार, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। मैं बता हाँ। रहा हूँ टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होगा, वो टेबल याद होनी चाहिए सबको, याद करो एकदम, पूरा लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो यार एकदम। 250 न्यूटन, और f इंटू साइन 60 डिग्री कितना होगा 500 इंटू √3/2, ये आ जाएगा 250 √3। बट हमें इसका कुछ काम नहीं है ना, हमें हॉरिजॉन्टल का कुछ काम है क्या, नहीं है। नहीं। सो व्हाई I'll bother about this, no, there is no need, I'll just solve सर this। हमें सिर्फ क्या करना है, 800 माइनस 250 करना है ना। ठीक है, रुके, तो ये चीज हो गई, मैंने ये हमें सेंड किया था 250 आंसर। यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये फिगर बना के रख लेना था, और एफ साइन थीटा का कुछ यूज नहीं है, इसलिए मैं 250 √3 को कुछ यूज नहीं करूंगा, हमें नॉर्मल चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग सोचेंगे सर कंपोनेंट करने के बाद क्या हॉरिजॉन्टल वाला कुछ आएगा क्या यहाँ, नहीं, हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट वर्टिकल पे कुछ नहीं होता है, जो कोई एंगल पे होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं। अब सोचो कोई ऑलरेडी यहीं पर है तो कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। कोई ऑलरेडी वाई पे है, कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, सिर्फ वाई पे रहेगा, सिर्फ एक्स पे रहेगा। जब कोई एंगल थीटा होगा तब तो इफेक्ट आएगा ना। तो ये सिचुएशन हो गई यार। अब बताओ, अब देखो सब लोग देखो यार, अभी क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग का है, फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस क्या होता है यार, कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था 800, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 250, और एक कौन लग रहा है, नॉर्मल। तो अभी सिचुएशन क्या है, फोर्स बैलेंस मतलब क्या फोर्स बैलेंस का, दैट अपवर्ड फोर्स इक्वल मस्ट बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स। तो यार अपवर्ड में देखो ना, ऑलरेडी 250 लग रहा है, तो कम लगाना पड़ेगा ना नॉर्मल को, जिससे दोनों लोग मिलके बैलेंस करें। तो क्या होगी बैलेंसिंग टेक्निक, नॉर्मल
और 250 मिलके किसे बैलेंस करेंगे? 800 को। 100 को तो बेटा नॉर्मल कितना आ जाएगा इस सिनेरियो में? 550 माइनस 250, यस 550। तो इस तरीके से थोड़ा सा यार याद रखना है आप लोग को कि अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता और आप बोलते कि सर आपने सिखाया नहीं है, तो इट इज ऑल योर फॉल्ट यार। देखो मैंने थीटा सिखाया ना, कॉस थीटा साइन थीटा करना सिखाया ना, सारी चीजें सिखाई। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर ऐड करके दिया है। जैसे फर्स्ट आंसर आई गॉट वाज 1050, बहुत ही स्पीड में किसी ने आंसर किया था 1050। दैट मीन्स ही वाज एबल टू सॉल्व दिस एंड दिस, ये दो चीजें सॉल्व कर ली थी। ऑल मिसिंग वाज हाँ सर मैंने कॉमन सेंस। या ओके, सो ऑल द प्रॉब्लम वाज कि वो कॉमन पार्ट आपने मिस कर दिया, क्या? फोर्स बैलेंस। विद प्रॉपर डायरेक्शन वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। सर हाँ ये एक्सटर्नल फोर्स 250 लग रहा था ना, हाँ, अगर वो 800 से ज्यादा लग रहा था तो वो जो लिफ्ट ऑब्जेक्ट है अप वो, होगा, हाँ, वो फिर सरफेस नॉर्मल कुछ लगाएगा। नॉर्मल नहीं होगा ना, नॉर्मल की जरूरत ही नहीं होगी। तो सेकंड केस आई एम हाँ, राइटिंग, या व्हेन एक्सटर्नल null force component, not force, force component, कौन सा कंपोनेंट? y वाला will exceed 800 Newton, then box will leave the contact. डन? समझ आया सबको? यस सर। अगर वो बॉक्स लीव कर गया सरफेस, सर या सर वो लीव शायद से रह गया था। या अच्छा, अब बताओ अगर वो लीव कर गया कांटेक्ट तो नॉर्मल रिएक्शन लगता कब है? वेन एवर देयर इज अ कांटेक्ट ना। अगर कांटेक्ट ही नहीं रहा तो कोई नॉर्मल रहेगा क्या? जीरो। सो नाउ as there is no contact, normal force will be zero. हाँ, फोर्स है ना। Zero. अच्छा अब एक बात बताओ, if I ask you what is the amount of force required to lift it, in this same 800 question, से ज्यादा। in this same question a person is pulling it with 500, with for what force he must pull to lift this block? आंसर 800 होगा क्या? नो, नो सर, क्योंकि ये 900 होगा परफेक्ट क्या? बैलेंस होगा। हाँ, 900 अगर ये लगाएगा तो लिफ्ट होगा। Is everyone okay with this or someone wants to explain something? आप बोल सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहेगा? What will happen if I apply 900 Newton force? Will it be lifted or not? सर श्योरली लिफ्ट होगा ये। Samiksha, you want to tell something? कोई और स्टूडेंट? नो सर। या सर अंशिका? प्रोबेबिलिटी होगी। अंशिका बताएं। सर बिकॉज अभी जब हमने सॉल्व किया था तो सर अगर 4 इंटू मतलब 900 इंटू cos 60 करेंगे तो 450 आएगा और फिर वो या छोटा रहेगा 800 न्यूटन से। very good, that's what I wanted to realize. Everyone should realize this. Why you are again going back to the previous part? I explained in this particular question. वो lift up वाला याद है ना, ये मशीन वाला क्या बताया था? 50 kg लिफ्ट करने के लिए 50 kg चाहिए क्या? नहीं ना, ज्यादा चाहिए ना। Why? Because a component is fit 50, not that. So like the who answered, yeah, Anshika, she answered, if I use 900 here,
and now if I take the component, that component will remain only 450. हाँ 3 degree. Will it be lifted in 450? No. So you should be very clear with this. So that's very great. हाँ सर, Good observation. हमें फिर 1600 से थोड़ा से ज्यादा ज्यादा चाहिए, इससे जब ज्यादा होगा then that component will be greater than 800, क्योंकि cos 60 मतलब हाफ है ना, so component should be like that. तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन यार. ये हम यहाँ पर लिखते हैं, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ in the previous question. So not an example like this if I write. So along same direction, the force required to lift it, so the force required to lift the box is not 800, because the lifting force is just a component, because the lifting force is a component of force. ठीक है, Fy 800 है. सो एक्चुअल फोर्स हमें जो निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, जस्ट मैंने प्रीवियसली बताया था कि Fy कैसे आया था, Fy is F into cos 60 degree. Clear? So the Fy is 800, not the F. The Fy is 800. Everyone go through this lecture again and do remember, do learn all these values, 60, 30, every values. सर. When you are fluent with these values, then the chances of error are less. Okay? Yeah. सर एग्जाम में वैल्यूज वाला ही I'll पूछेगा. explain. Wait. So the force required should be more than 1600 Newton. हाँ, ई cos थीटा बीच में आ गया. हाँ, ठीक है. चले तो यार, आज हमने जो भी डिस्कस किया वो एकदम उसके साथ एकदम आपको अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन आपको वैल्यूज साइन थीटा, कॉस थीटा और उसकी ऑल वैल्यूज जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखा है वो सारी याद करनी रहेगी. वो ऑल कंबाइंड टेस्ट होगी, क्या? उसके लिए हम कौन कौन से लेक्चर रिवाइज करने होंगे? हाँ वो बता रहे हैं, तो कंबाइंड टेस्ट. हाँ देख रहे हैं, डिस्कस करते हैं उसको. तो टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, टेस्ट के लिए लेक्चर्स कैसे रहेंगे, तो हमारे पास 4 लेक्चर्स है. किसके लिए? लॉज ऑफ मोशन. हाँ ठीक है, सर, लॉज ऑफ मोशन हुआ था. या नो प्रॉब्लम. सो हमारे पास 4 लेक्चर्स है, देख लेंगे एक बार. 4 लेक्चर्स है किस पे? लॉज ऑफ मोशन पे. या ओके सर कल कौन सी टेस्ट है या नहीं है ना बायो कल की कौन सी? कल बायो का टेस्ट है ना. यस सर का है. ग्रुप देखते रहो ना यार, ग्रुप पे सारी चीजें आपको हाँ सर पोस्ट किया. मैसेज की जाती हैं. ओके सुने, तो हमारे पास 4 लेक्चर्स हैं लॉज ऑफ मोशन के. सो उसमें से होंगे 10 क्वेश्चंस. ओके Clear? Including this lecture 18 also. And as you know that the numericals are in 16, 17, 18 only. First में numerical नहीं है ज़्यादा. So the preferable will be these 3. ओके Okay. Next. सर. Yeah. 15 में जो स्प्रिंग कांस्टेंट के हमने थोड़े लिए थे ना एग्जांपल, वो भी cover आएगा. हाँ आएंगे, सारा कुछ आएगा. ठीक है. सर अगर हमने सिर्फ ये पीडीएफ देख लिए तो चलेगा क्या? ओके अपने चीज आदित्य क्या? सर अपने पीडीएफ के थ्रू नोट सेंड किए ना वो गूगल हाँ. ड्राइव पे. हाँ हाँ तो सिर्फ उनको रिवाइज किया तो भी चलेगा उनको, ना? हाँ that is enough. All हाँ you need to remember is like you need to be thorough with all the concepts. What happens is mistakes. It's not like you don't know the concepts. What happened is mistakes. So try to minimize the mistakes. Okay, learn यस सर. more you can. Okay, अभी 10 questions होंगे लेक्चर नंबर किससे? 15, 16, 17 से, जो अपना है लॉज ऑफ मोशन है. देन अगर मैं बात करूँ ग्राफ्स की, तो हाँ लेक्चर नंबर 13 and 14 आर फ्रॉम ग्राफ. ठीक है,
12, a bit of relative motion 11. ओके ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा इजी रखता हूँ, पेपर थोड़ा सा सिलेबस कम कर देते हैं। ओके सो मैं फाइनलाइज करता हूँ सिलेबस, मैं सिलेबस फाइनलाइज कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन होंगे। एक बार मैं लेक्चर 15 देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा था क्या लेक्चर 15 में हमने। स्प्रिंग है, ठीक है, सर स्प्रिंग का है, देखा था। स्प्रिंग का। ओके सो देखते हैं। सो सिचुएशन ये है, 10 क्वेश्चंस होंगे, एनएलएम सॉरी लॉज ऑफ मोशन, और कोई लेक्चर नंबर 15, 16, 17 and 18 डन। 10 क्वेश्चन में से काइनेमेटिक्स में हम मोशन अंडर ग्रेविटी से ले लेते हैं। ओके सो लेक्चर नंबर 11 से हम ले लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से, सॉरी दिस इज लेक्चर 10। ओके सो लेक्चर 10 to 14 डन। ओके सर। सो सिंपल कर दिया, काइनेमेटिक्स पूरा नहीं पढ़ना है। ओके सर। काइनेमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। लेक्चर नंबर 10 टू जो भी रिमेनिंग है, कितने थे, 5 हाँ 4 सॉरी, ठीक है। सो लेक्चर 10 नंबर to 14. 10 to 14, तो उसमें ग्राफ्स भी कवर हो जाएंगे आपके। 10 to 14 टोटल 8 लेक्चर्स में से आएगा, ओके सर। नहीं 5 हो गए यहाँ पर, तो 9 लेक्चर। 9 लेक्चर्स में से। ओके या ओके देन, ओके बाय थैंक बाय एवरीवन। या मतलब वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन नहीं आएगा। नहीं आएगा। सर ओके या सर आज जो आपने जो सम सीखा है उसके आप थोड़े प्रैक्टिस भेज सकते हो, प्रैक्टिस शीट या कुछ। एक्चुअली ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पार्ट, प्रैक्टिस शीट बी गिवन व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड। ओके अभी Yes, जस्ट sir. बेसिक्स हुआ है, सो सिर्फ बेसिक में से ही क्वेश्चन रहेगा। या अभी तक जो हुआ है वो उसका थोड़ा 25 क्वेश्चंस। नहीं अभी एक्चुअली नहीं भेज सकते, वो बहुत ही बेसिक्स है, मतलब उसमें हाँ। प्रैक्टिस शीट कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कंपोनेंट सिखाया ना, अभी यूज नहीं बताया कि उसका यूज कहाँ पे होने वाला है। ये तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा यूज बताया, अभी वो आगे बहुत ज्यादा यूज होगा तब हम प्रैक्टिस शीट कर पाएंगे। बट ऑलरेडी मैंने 5-6 क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में हुआ ना, यस सर। सिमिलर मैनर में करना है। अभी देखो पॉइंट क्या है, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग, एग्जैक्टली आपको प्रिपरेशन में क्या ध्यान देना है। टेस्ट में मैं ये जज करना चाहता हूँ, मैं एक एडिशन का बार बार आज एग्जांपल ले रहा हूँ, 25+3 मैंने अगर आपको सिखाया है, सो अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ 27+2, ठीक है, फिर मैं एग्जांपल दूँ 22+5, इज इट नेसेसरी? if you know the concept of solving this, you must be good with this, clear? तो आई एम लाइक टेस्टिंग दिस कि अगर आपको ये वाला आता है तो ये आ ही जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। हाँ। तो वो एग्जाम में थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस चीजें रहनी चाहिए, सो दैट यू कैन चेक कि आपको ऐसा तो नहीं होता कि आप पढ़ लेते हो और बाद में एग्जाम में यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। हाँ यस सर, Okay. मतलब आज का अगर हमने पीडीएफ देखा तो ये देखा काफी है और ना। सारे क्वेश्चन आज के अगर सॉल्व किए, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स। सर या हमें फिजिक्स के लिए कितना टाइम रखना है, मतलब अप्रॉक्स? यूजुअली उसमें जो है, मतलब फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस हैं, सो यू नीड नियर अबाउट 45 मिनट्स। हाँ हाँ फिजिक्स में स्पेशली आपके 2 ही सब्जेक्ट में टाइम लगता है आपको, फिजिक्स एंड मैथ, हाँ द रेस्ट टू विल नॉट कंज्यूम दैट मच टाइम। हाँ, क्योंकि वासु सर ने बोला था आपको हार्डली 40 मिनट्स लगेगा। हाँ वही इवन कम ही लगेगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड मैथ विल टेक मोर टाइम। ओके यस ओके बाय बाय एवरीवन देन। ओके या एनी अदर डाउट? टेस्ट तक और एक लेक्चर होगा ना, तो वो भी आएगा टेस्ट में। टेस्ट में और एक लेक्चर होगा? क्यों, संडे नो को? नो सर, नेक्स्ट वीक तक और एक लेक्चर हो जाएगा ना टेस्ट से नहीं पहले। होगा, नहीं होगा, संडे लेक्चर होता है, फिजिक्स नहीं होगा, नेक्स्ट संडे फिजिक्स लेक्चर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा नहीं सर। तो फिर कोई मिडल डे में? नहीं वो पूरा शेड्यूल पैक है,
वो पॉसिबल नहीं है, बट कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग भेजो। अगर नोट्स में कुछ नहीं समझ आया, लेक्चर एक बार रिवाइज करो, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है? यस ओके सर। ओके ओके बाय देन सर, थैंक यू सर, सर। और आप बाय सर। लेक्चर का पीडीएफ वो ड्राइव में डाल दो। या ड्राइव पे प्रॉपर्ली अपडेटेड रहेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, ये ड्राइव इजी है थोड़ा। या ओके। बाय सर, थैंक